is the first lecture, although you must have been aware and familiar with the previous concepts that you have studied in your previous classes and previous lectures. I welcome you on behalf of the chemistry class, and my parallel teacher is Sir Shakil, as you already know. In online classes, I'll be taking your online class as a chemistry teacher. So previous 8 chapters you have studied in class 9th. The next 9 chapters or 8 chapters you will be studying in this class. So the very first topic, the very first chapter is chemical equilibrium. इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि what is actually chemical equilibrium, जो terminologies हैं, you must have studied a little bit about it, but since I'm taking it for the first time, your lecture, so we'll go and revise it in a more efficient, effective way. So the topics that are supposed that you'll be covering in this lecture are concept of reversible, irreversible reaction, dynamic equilibrium क्या होता है और dynamic equilibrium और simple equilibrium में क्या फर्क है. We will study that as well. Then law of mass action is there. फिर उसकी derivation है and how we are going to derive for equilibrium constant, that is in your syllabus. In this chapter we will be studying. And then equilibrium constant and its calculation. How to calculate the equilibrium constant? एक तो हमने derive किया. That is a general expression that we have derived the equilibrium constant. But how we are going to after the derivation, once we have derived the equilibrium constant, एक दफा हमने derive कर लिया equilibrium constant को, तो फिर उससे मजीद calculations कैसे करनी है? Mathematical expression तो हमने calculate कर लिया, derive कर लिया. उससे मजीद values put in करके calculations कैसे करेंगे उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. Then and last but not the least, we will study the significance of equilibrium constant. Significance का मतलब होता है बच्चों importance of equilibrium constant. What is the importance? The industrial application, the general application, laboratory scale के ऊपर, and at the industrial scale as well, we will be studying in detail the significance of the equilibrium constant. लेकिन सबसे पहले you need to understand what is the idea of a reversible and an irreversible reaction. So let me do it for you. A reversible reaction, some chemical reactions जो हैं, for instance, बड़ी अच्छी मिसाल इसकी, when I started teaching 10th class ना, previously before 5 years ago, I started teaching 10th class and this was the topic given to me, and I taught them कि भाई जब बिरयानी बनानी होती है, when you want to make biryani, तो क्या क्या डालते हैं? चावल होते हैं, chicken is there, spices are there, oil is there, water is there, ठीक है? इन सबको जब आप mix up करते हैं तो कुछ एक specific time के बाद when you provide some temperature under certain conditions बिरयानी बन जाती है. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, मैं कहता हूँ कि जी चावलों को अलग कर दें, spices को अलग कर दें, chicken को अलग कर दें, उसके अंदर पानी था, separated, it is not possible. This means that although A plus B has gone to C plus D, but they cannot return back. ये जो है return back नहीं कर सकते. मिसाल ऐसे ये बिरयानी के ingredients थे, मैंने mix up करके बिरयानी बना ली. लेकिन अब मैं वापस बिरयानी को कह रहा हूँ कि वापस अपने ingredients में चले जाए, तो that is not the case. This cannot happen. That type of reactions, chemistry के अंदर ऐसे reactions जो product तो बना दें. I repeat, the type of reactions that make the product but cannot go back to the reactant side, they cannot go back to the reactant side, they cannot return to the reactant side, are called irreversible reaction. क्या कहते हैं बेटे इनको? Irreversible reaction. इनको हम कहते हैं irreversible reaction. इसकी एक और जनरल टर्म में डेफिनेशन है, जो रिएक्शंस वापस नहीं जा सकते, जो एक ही साइड में प्रोसीड करते हैं. क्या करते हैं? एक ही साइड में प्रोसीड करते हैं. दो किस्म के रिएक्शंस है ना, ये देखें, A प्लस B जब जा रहा था और C बना रहा था, चलें, जब मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं, बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कहूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड. और जब ये वापस C A और B में कन्वर्ट होगा, उसको कहूंगा रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है? तो प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट की तरफ आएंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के, तो वो रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है? राइट टू लेफ्ट.
लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ when we are moving from reactant to the product, that is forward direction. Left to right forward direction को कहते हैं. केक बनाते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर you can see when you make a cake, some chemical reactions can occur in only one direction. You can see these reactions are called irreversible reactions. ये irreversible है, they cannot go back. The products once formed, they cannot go back. The reactants can change to the products, but the products cannot change back to the reactants. Reactants को जो है आप प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसकी मिसाल ऐसी like making a cake. The ingredients of a cake such as eggs and flour are the reactants. When they are mixed together and they are baked to form the cake, केक तो है प्रोडक्ट, लेकिन केक से मैं वापस फ्लावर और एग्स निकाल सकता हूं? नहीं. So ऐसा रिएक्शन जिसमें हम प्रोडक्ट तो बना लें लेकिन वापस रिएक्टेंट में नहीं जा सकते, we cannot return to the reactant side, that reaction is called irreversible reaction. यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें. कंबस्शन रिएक्शंस आर, शाबाश, क्लियर हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट. कंबस्शन रिएक्शंस जो होते हैं मेरे बच्चों, कंबस्शन रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं. अब सवाल ये उठता है कि कंबस्शन रिएक्शन होता क्या है. कंबस्ट किसी भी चीज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करना या किसी भी चीज का एयर के साथ रिएक्ट करना, और स्पेसिफिकली एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, बात तो एक ही है, उसको हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन. अब दो किस्म के बच्चों कंबस्शन होती है. एक वो कंबस्शन होती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड पॉइंट में कंप्लीट कंबस्शन है. और एक वो रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन. इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या होती है, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, उसमें प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड. और इनकम्प्लीट कंबस्शन ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू कंप्लीट कंबस्शन. क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी आपकी एनवायरनमेंट में है, और वो तो प्लांट्स जो है वो टेक अप करते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन, बट प्लांट्स डोंट टेक अप द कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. ये आपकी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी करती है इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से. और इनकम्प्लीट कंबस्शन का क्या मतलब हुआ, ये तो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स कंप्लीट में बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकम्प्लीट कंबस्शन में बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर. वाटर इज कांस्टेंट, वाटर दोनों में बन रहा है. कंप्लीट कंबस्शन में ऑक्सीजन जो होती है, ये देखें, ये जो रिएक्शन है फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों ये एक्सेस में होती है. ये किस में होती है? ऑक्सीजन इज इन एक्सेस. एक्सेस का मतलब ज्यादती में होती है, ज्यादा होती है. लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं होती. ऑक्सीजन जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है, लिमिटेड अमाउंट में होती है. क्या होती है? लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होती है. और जब लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होती है इसका मतलब होता है कि दैट इट इज गोइंग टू द रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबस्शन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है. रिएक्शंस देखें. अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन गया मेरे बच्चों, तो हम वापस नहीं जा सकते. ये ना करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने पकड़ा और वाटर को मिक्स कर दिया तो वापस ऑक्सीजन और फ्यूल बन जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो गाड़ियों में फिर ऐसा ना होता कि फ्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ती. जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है एग्जॉस्ट फ्यूम के अंदर से, वो जो साइलेंसर के अंदर से, तो फिर वो वापस फ्यूल बन जाता, वो गाड़ी सारी जिंदगी ऐसे चलती. दिस इज नॉट द केस. So it is a perfect example of incomplete combustion. Sorry, combustion complete या incomplete, लेकिन ये irreversible reaction है. क्या है ये बच्चों? Irreversible reaction, जो कि ये वापस नहीं जा सकता. These two products cannot react. वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई है. They cannot react to reform the fuel and oxygen. So the reaction is irreversible. The one way arrow. अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए. पेपर के अंदर आपको आ जाता है क्वेश्चन, जैसे वो कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इररिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो इररिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A प्लस B
goes to C। ये सिंगल एरो है ना बच्चों, सिंगल एरो का मतलब है कि ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड के ऊपर। दिस मींस द रिएक्शन इज ओनली प्रोसीडिंग इन वन डायरेक्शन, ओनली वन एंड ओनली वन डायरेक्शन। देन इसके अलावा कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। इनको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी, सिंगल एरो, सी बन गया, और सी और डी बन गए अगर, तो ये सी और डी वापस जो है रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये निशान होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। किसका? रिवर्सिबल रिएक्शन का। ऐसे रिएक्शंस that can proceed in both directions, that can proceed in both directions, that reactions are called reversible reaction। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें ध्यान से कि many chemical reactions can occur in both directions, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। These reactions are called reversible reactions। Not only can the reactants change to the products, but the products can change back to the reactants, at least under certain conditions। Consider the reaction। अब जरा इस रिएक्शन को बच्चों ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ के आए हुए हैं क्लास 9th में 7th चैप्टर के अंदर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसके रेफरेंस से ये पॉइंट्स जो है पॉइंट टू अंडरस्टैंड है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। अब कंसिडर करें, कंसिडर अगेन द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू कंबाइन वाटर। याद रखें रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गोज टू वाटर, लेकिन ये रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए बच्चों, ये बात समझ आती है। हाइड्रोजन को मिक्स किया ऑक्सीजन के अंदर तो वाटर मिल गया हमें लिक्विड स्टेट के अंदर। दोनों गैसेस थी, अंडर सर्टेन कंडीशंस इग्निशन, इसको इग्नाइट करना पड़ता है इस रिएक्शन को। अब होता क्या है, मेरे पास आ गया वाटर का अगर आयन है और OH नेगेटिव आयंस बन जाएंगी, यानी कि जो है आपका एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जाके बन जाएगी, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस जाके बन जाएगी। इधर देखें, ये देखें स्क्रीन के ऊपर सी, ये वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो वापस जो थी हाइड्रोजन गैस बन गई और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर बना रहे हैं तो वाटर का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं तो वाटर फिर से जो है उसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? कन्वर्ट कर देता है। दिस मीन्स कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है ये? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह आपकी बुक के अंदर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का रिएक्शन है। किसका है? हाइड्रोजन और आयोडीन का। क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोजन आयोडाइड। और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से वापस रिएक्ट करता है, वो ब्रेकअप होता है और वो वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। जी बच्चों, सवाल है तो पूछें, शाबाश। स्टूडेंट्स, can you hear me? Students, can you hear me? Yes, sir. Perfect. Okay. So I thought I lost all that things. Okay. In a chemical, इस question को देखें बच्चों. Look at this question. Yes, this question. Where is my pen? This is, yeah. Look at this question, beta. In a chemical equation, a reversible reaction is represented with two arrows. Chemical equation में reversible को दो arrows से, ये देखें ये वाला arrow, ये दो arrows हैं, ठीक है?
वन पॉइंटिंग इन ईच डायरेक्शन, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है. हाउ वुड यू रिप्रेजेंट the reversible reaction in which hydrogen gas and oxygen gas combine to produce water? So simple है, hydrogen gas plus oxygen gas goes to water. अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये रिवर्सिबल भी है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं. लेकिन चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एरो से हमें पता चल रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस जब मैं करा दूंगा तो वापस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें एज reactants we can collect. All clear? Let's proceed further. अब कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का. इसको जरा बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि the concept of equilibrium is of immense importance. In a reversible reaction, both forward and reverse reactions of the reaction generally occur at the same time. कहने का मकसद है कि जैसे A और B C में कन्वर्ट हो रहे थे, इधर मैं चले बना देता हूं, A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस D. अब जरा ध्यान से समझिएगा, जिस टाइम के ऊपर, जिस रेट के ऊपर A और B C में कन्वर्ट, C एंड D में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड से C और D वापस A और B में कन्वर्ट हो रहे हैं. ए और बी बनता है, वो सीओडी में कन्वर्ट हो जाता है, सीओडी दोबारा रिएक्ट करके ए और बी बना देते हैं, और द साइकिल गोज ऑन, द साइकिल गोज ऑन. अब आगे की स्टोरी क्या है, आगे की कहानी क्या है, ये समझने से ताल्लुक रखता है. ऑफन अ पॉइंट इज रीच्ड एट विच अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम. यानी कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, जिस स्पीड से ए और बी सीओडी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड और उसी रेट से सीओडी वापस ए और बी में भी कन्वर्ट हो रहे हैं. दोबारा मैं बताता हूं ये बात, जिस रेट से, जिस स्पीड से ए और बी आर कन्वर्टिंग इनटू सी एंड डी एट द सेम रेशियो, एट द सेम पेस, एट द सेम रेट, एट द सेम स्पीड, सी एंड डी इज बीइंग कन्वर्टेड एट ए एंड बी. और एक पॉइंट आता है कि लेफ्ट हैंड साइड, आसान लफ्जों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड. या केमिस्ट्री के रेफरेंस से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और एक बैलेंस की सिचुएशन आ जाती है. किसकी सिचुएशन आ जाती है? अ बैलेंस इज फॉर्म, और इस बैलेंस को हम केमिस्ट्री में कहते हैं इक्विलिब्रियम. क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम. ऑपोजिंग चेंजेस के अंदर, अपोजिंग चेंजेस के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर जब रिएक्शंस इक्विफाई हो जाएं, इक्वेट हो जाएं, इक्वल हो जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्स, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम, टू बी मोर प्रिसाइज. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगली स्लाइड में हमें क्लियर होता है. ये जरा देखिएगा बच्चों, इसको जरा समझिएगा ध्यान से, टेक्निकल है. ये आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर अकर हुआ है. इसका मतलब हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. यानी कि फॉरवर्ड जो है, ये फॉरवर्ड चलना शुरू हो गया था रिएक्शन, ये देखें, और ये रिवर्स वापस चलना शुरू हो गया था. ठीक है, रिवर्स का मतलब है ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है. और इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये देखिए, द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर नाउ इक्वल. इस पॉइंट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. यहां तक कोई कॉन्सेप्ट पूछना है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर. ये सब पूछना है. जी बेटे पूछे, शाबाश, वेरी गुड. जिस रेशो में हम एक मतलब प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ए और बी लेते हैं, और जब वो जिस रिएक्टेंट लेते हैं और वो जब प्रोडक्ट बनता है, तो जब वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें कोई लॉस होता है कि वो उतने ही रिएक्टेंट्स में बन जाता है, उसकी रेशो में कोई लॉस होता है? हाँ, मैं ये गुजारिश करने लगा हूं, अगर आप आइडियली देखते हैं, दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं. एक आइडियल सिचुएशन होती है
जिसको हम कंट्रोल सिचुएशन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और एक रिएक्शन होता है जो कि अंडर ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, ठीक है। याद रखें कि आपके लॉसेस जो होते हैं दे आर देयर, बट अगर अंडर आइडियल कंडीशंस देखा जाए, जो कि जिसको हम लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड सिचुएशन कहते हैं, तो जिस रिएक्शन रेट से फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है रिएक्शन, उसी रेट से रिवर्स भी प्रोसीड करे तो लॉसेस नहीं होते अंडर आइडियल कंडीशंस आई एम टॉकिंग। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी में देखें तो लॉसेस आर देयर। यहाँ पे याद रखें बच्चे, बेटे लिसन टू वन थिंग, यहाँ पे बात मैथ्स की नहीं हो रही, बात रेट की हो रही है, ठीक है बेटे। रेट का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिस स्पीड से फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है उसी स्पीड से रिवर्स भी प्रोसीड करेगा। let's clear our minds that the point of interest, that a point of opinion here is not the mass or the losses, the point here is the rate, the speed, the pace of the reaction, ठीक है बेटा। जी सर। क्लियर हुआ? आगे चले। जी शाबाश। ये कुछ टॉपिक्स है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब सवाल ये आता है कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, तो इसके ऊपर जरा जल्दी से गुफ्तगू कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑन अ वेरी माइन्यूट लेवल, स्मॉलर लेवल, सॉरी, माइक्रोस्कोपिक बेशुमार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपके कैटलिस्ट का एक इफेक्ट हो रहा होता है, टेम्परेचर इज देयर, प्रेशर इज देयर, विस्कोसिटी का फैक्टर आ जाता है, डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। इसके ऊपर स्टार बनाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ जाता है सवाल शॉर्ट में, ठीक है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो बारी बारी हम देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन वेरी टेक्निकल एंड वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। इसकी बेस के ऊपर आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी की बेस के ऊपर वी विल स्टडी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के जरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये आपकी बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट ली है, तो जरा बुक से पढ़ लीजिएगा। The characteristics of forward and reverse reactions are as follows. Forward reaction, it is a reaction in which reactants react to form products. यानी कि चले इसको हम इक्वेशन के रेफरेंस से देख लेते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये है। इट इज अ रिएक्शन, पहला पॉइंट, इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। फिर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, फॉरवर्ड रिएक्शन कहां से प्रोसीड होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो होता है, इट प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देन एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। हाँ, ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? अब इस कॉन्सेप्ट को देखें, मैं जरा रिमूव कर लूं। हाँ जी, इनिशियली जब ए और बी को मैंने बनाना शुरू किया, इनिशियली बात करो जीरो स्टेट के ऊपर, टाइम जीरो, तो अभी मैंने ए और बी अलग-अलग रखे हुए हैं। अभी ए और बी जब अलग-अलग हैं तो सीओडी होगा नहीं, रिएक्टेंट ही नहीं मैंने मिक्स करना शुरू किया एट टाइम जीरो, यानी कि अभी मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया। इसका मतलब ये, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही ना भैया। जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो उसका रेट ही नहीं डिटरमिन हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, थर्ड पॉइंट का मतलब, एट इनिशियल स्टेज। अब मैंने जब ए और बी को मिला दिया तो एकदम वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जब रिएक्शन स्टार्ट हो तो एकदम से वो सीओडी नहीं बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, ए और बी का ए और बी का रिएक्शन तो फास्ट है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन सीओडी जो वापस जा रहे हैं वो अभी इतना फास्ट नहीं है, अभी उसको बनने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एट टाइम टी जीरो ए और बी तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो था वो स्टार्ट अभी नहीं हुआ। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ए और बी का रिएक्शन जो है, जैसे कि आपने ये देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपने देखा, लास्ट पॉइंट, फॉरवर्ड रिएक्शन इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। ये देखें फॉरवर्ड रिएक्शन, ये देखें कम हो रहा है, और रिवर्स रिएक्शन का आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ रहा है। तो आखिरी पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया, फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, द रेट डिक्रीजेस स्लोली, एंड रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है इट इंक्रीजेस स्लोली। तो आखिरी पॉइंट जो था वो ये तो समझाया उसने। लास्ट पॉइंट इज दिस कि इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, यानी कि वो जो ग्राफ बना वो इस तरह था, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली,
और ये रिवर्स रिएक्शन इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्लाइड से कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, शाबाश। जी बेटा, any question feel free to ask, because I'll just end my today's topic here, क्योंकि कल जो है वो डेरिवेशन है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। जी बेटा जी, क्लास आस्क क्वेश्चन, शाबाश। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बॉयज? जी बेटो, शाबाश। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क बेटे। ओके ओके गुड। तो आज हमने फिर क्या पढ़ा? ओके वेरी गुड वेरी गुड, इट्स क्लियर 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 क्लियर, शाबाश शाबाश, आई कैन सी दैट। क्या पढ़ा हमने? पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन कब होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो डिटेल्स हैं उसके बारे में भी स्टार्टेड, ओके, कि व्हाट आर फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन of the forward reaction becomes equal to the rate of reaction of the reverse reaction, उस पॉइंट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां तक मेरा कॉन्सेप्ट था आज का। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है बच्चों तो मुझसे पूछें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। शाबाश।